chapter number 4, sequence and series. Okay, तो यहाँ पे तुम्हें जीपी एंड एचपी ये दो सीक्वेंसेस पढ़ने हैं, एपी नहीं पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी जीपी एंड एचपी. GP is your geometric progression. HP is your harmonic progression. We have GP and HP. GP is geometric progression and HP is harmonic progression. Okay, let's start with geometric progression. Geometric progression means what? We have the series of the term, say T1, T2, T3, T4, T5, T6, and so on. So if you want to prove or if you want to show that the given sequence is in GP, then the ratio between the consecutive term must be constant. It means here I'll find the ratio T2 upon T1. Then I will calculate T3 upon T2. Then the next ratio will be T4 upon T3. The next ratio is T5 upon T4. And the last ratio, and it is so on, but we have till T6 terms only. So I'll get the last ratio T6 upon T5. Get all the ratios. If all these ratios are equal, let it be R. So we can say that the given sequence is in GP. And this R is my common ratio. This is ratio common to all. Okay. And if the sequence is in GP, they will ask you to calculate the nth term. So for the nth term, the formula is Tn is equal to A R raised to n minus 1. This is the formula for nth term. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. तो ये फॉर्मूला याद करना है. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. ठीक है. I'll start with the question, so it will be more clear. So I'm writing a few terms over here. Example, say 3, 6, 12, 24 and so on. Question बोला है show that or check whether the given sequence is in GP or not. So what you will do, will find the ratio. हमेशा next term जो भी रहेगा upon the previous term, that is 6/3 निकालेंगे. This is my T1, this is my T2, this is my T3 and this is my T4. We have 4 terms. So we'll calculate the ratio till T4 तक. T4 तक का ratio सब निकालेंगे. Every ratio you will have to calculate. So first I will calculate T2 upon T1, that is 6 upon 3, which is 2. Then I will calculate T3 upon T2, which is 12 divided by 6, which is again 2. Then I will calculate the last ratio T4 upon T3. This is 24 upon 12, which is again 2. So we have this 2, 2, 2. This is my common ratio. Which is taken as R.
which is taken as R. So common ratio सब में 2 2 2 means common ratio same आ रहा है. So hence the sequence is in GP. The sequence is in GP. तो अगर रेशियो सबका सेम आ रहा है, so we can say that the sequence is in GP. अगर sequence GP में है, if the sequence is in GP, they will ask you find the nth term. तो अगर तुम्हें nth term निकालना, here I'll write the formula. It's a multiplied by r raised to n minus 1. A multiplied by r raised to n minus 1, where a and r, these two terms you should know, where a is called as my first term of the sequence and where r, as usual, it is called as common ratio. Okay, so in my sequence a and r, a is my first term, which is 3, r, which is common ratio, which is 2. So r is 3 and sorry, a is 3, the first term is 3, and the common ratio, it is constant, which is my 2. और कांस्टेंट होना ही चाहिए. कांस्टेंट अगर नहीं रहा, समझो ये 2 रहा, ये 2 रहा और ये समझो कि 3 आ रहा है सपोज, तो गिवन सीक्वेंस जीपी में नहीं है. और जीपी में अगर नहीं रहेगा तो nth टर्म कैलकुलेट नहीं करना है. The sequence must be in GP, then only we will calculate the nth term. और GP के लिए every ratio must be constant or every ratio must be same. So let's start. Tn a r की वैल्यू 2 raised to n minus 1. This is my nth term. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करना कभी भी. कीप इट एज इट इज. ए अलग रहेगा और r रेज टू n माइनस 1 ये सेपरेट टर्म रहेंगे. ठीक है, ये इसी फॉर्म में ही छोड़ना है. नेक्स्ट थिंग, अगर क्वेश्चन में बोला है if this sequence is going on, what will be the 10th term of the sequence? तो मैं क्वेश्चन पूछा है कि 10th term क्या रहेगा, what will be the 10th term? तो बस तुम्हें क्या करना है, लास्ट में n की वैल्यू 10 पुट अप कर देना है. तो दिस इज t10 is equal to 3 in bracket 2 raised to 10 minus 1. तो जहां पे भी n था वहां पे you have to substitute 10, which is 2 raised to 9, and 3 times of 2 raised to 9, it is 512, and 3 into 512, it will be 1536. So 1536 is my 10th term of the sequence. 10th term of the sequence. ठीक है, so this is all about the GP. GP में तुम्हें इतना ही पढ़ना है और इसके बाद sum of n terms आएगा, वो next exercise में. But till for the first exercise we have to learn only this much part. Okay, so ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो. That nth term का फॉर्मूला Tn is equal to a multiplied by r raised to n minus 1, where a is my first term and r is my common ratio. A is my first term and r is my common ratio. Okay, now I'll start with exercise. Yes. Verify whether the following sequences are in GP. If so, find Tn. So I think मैंने first question last time किया था. Obviously all questions are of same type है, so I'll start with the second question. वेरीफाई करना है कि सबसे पहले सीक्वेंस जीपी में है या नहीं. इफ सो, अगर जीपी में है, then calculate nth term. So let's do second question. We have 1, minus 5, 25 and minus 125. This is my T1, T2, T3 and T4. ठीक है, calculate the ratio which is T2 by T1. So it's minus 5 divided by 1. आंसर आएगा minus 5. Second ratio 25 divided by minus 5, which is again minus 5. And last ratio है
minus 125 divided by 25, which is again minus 5. जरूरी नहीं कि तुम T1 T2 से रिप्रेजेंट करो, डायरेक्टली तुम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकाल सकते हो. एंड एज यू कैन सी द रेशियो इज कांस्टेंट. The ratio is constant. Hence, the sequence is in GP. अगर sequence GP में है, so we have to calculate the nth term. So here I'll write the formula. Tn is equal to, it's a in bracket r raised to n minus 1. So that Tn is equal to a, my first term, which is 1, ratio, which is minus 5 raised to n minus 1. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी हैव द सेम टर्म, क्योंकि 1 का मीनिंग नहीं होता है व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. तो इट इज जस्ट minus 5 raised to n minus 1. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. तो बस चेक करना है जीपी में है, और अगर जीपी में है तो फाइंड द nth टर्म. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा ये रूट के टर्म से. In the third question, we have the term, it's root 5, 1 upon root 5, 1 upon 5 root 5 and 1 upon 25 root 5. और मुझे चेक करना जीपी में है या नहीं. तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज वी हैव a अपॉन b न्यूमिनेटर में है, एंड अगर डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हुआ, दैट इज c अपॉन d. इफ वी हैव अ फ्रैक्शन देन इट विल बी a अपॉन b. न्यूमिनेटर ऐसी रहेगा. अगर डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन इफ यू आर टेकिंग अप, रेसिप्रोकेट हो जाएगा. रेसिप्रोकेट मतलब जो c बाई डी है, इट विल बी d बाई c हो जाएगा. एंड देन जो भी कैलकुलेशन करना या कैंसिलेशन करना कर सकते हैं. तो कभी भी अगर याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो यू हैव टू टेक अप, और अप लेने पे जो c बाई डी रहा, इट बिकम्स d बाय c. बस एक छोटा सा कंसेप्ट पता रहना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन. न्यूमिनेटर अगर फ्रैक्शन में है तो भी ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो भी ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट. वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज माय T1, this is my T2, this is my T3, this is my T4. So we have this four term, T1, T2, T3 and T4. Here I'm writing the ratio T2 upon T1, 1 upon root 5. न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है एंड डिनोमिनेटर में वी हैव T1 which is root 5. देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन करो, which is root 5 by 1. टेक इट अप. इफ यू टेक अप रूट 5 बाय 1 को लिखूंगा मैं 1 बाय रूट 5. ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. विल मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, रूट 5 इंटू रूट 5 विल बी 5. तो मेरा फर्स्ट रेशियो आया. याद रखो रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 ओनली. सो माय फर्स्ट रेशियो इज 1 अपॉन 5. आई विल गेट द सेकंड रेशियो T3 upon T2, 1 upon 5 root 5 upon 1 upon root 5. अगेन द सेम वे, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखो. इट विल गो अप, 1 बाय रूट 5 ऊपर आएगा, तो इट विल बी रूट 5 बाय 1. तो रूट 5 कैंसल. योर आंसर इज 1 upon 5 again. We'll calculate the last ratio, which is T4 upon T3, which is 1 upon 25 root 5 upon 1 upon 5 root 5. तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, which is 1 upon 25 root 5.
it will go up 1 upon 5 root 5. So it will be 5 root 5 upon 1. Do calculation or cancellation. Root 5 cancel. It's a 5 ऊपर और 25 नीचे. 5 ones are 5, 5 fives are 25. So again, I'm getting all these ratios same. So here we can write the ratio is constant. Hence, the sequence is in GP. और अगर sequence GP में है, so we have to find the nth term. So Tn is equal to A bracket में R raised to n minus 1. A is my first term, root 5. Ratio which is 1 upon 5 raised to n minus 1. और यहाँ पे stop कर देना है. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा A और R का. That's it. बाकी फोर्थ और फिफ्थ एक बार चेक कर लो. थर्ड सो ओके. जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, नाउ इट इज इजियर. तो आई एम गिविंग दिस टू सम्स एज अ प्रैक्टिस. तो इसे प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग. ठीक है. In second question we have 4 question. For the GP, if R is 1 by 3 and A is equal to 9, find T7. अब तुम्हारे पास सीक्वेंस नहीं दिया, बल्कि सीक्वेंस में तुम्हें ए और आर, मतलब जो फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो जो पता होना चाहिए, विच इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आर 1 by 3 दिया हुआ है, ए 9 दिया हुआ है. फाइंड T7. तो कभी भी अगर तुम्हें कोई भी टर्म निकालना रहा, सो फर्स्ट यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर Tn. तुम्हें Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज Tn का फॉर्मूला? इट इज ए आर raised to n minus 1. So Tn is equal to A is my 1 by, sorry, A is my 9, R 1 by 3 raised to n minus 1. ये मेरा Tn, which is nth term का formula, but I want to get seventh term. सेवेंथ टर्म मतलब n की वैल्यू 7 पुट अप करेंगे. 9 1 by 3. तो जहां भी n रहेगा देयर आई विल पुट 7, which is 7 minus 1. 7 minus 1 6. इसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे. 1 by 3 रेज टू 6 है, मतलब 1 by 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 1 by 3 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 3 4 5 1 more 1 by 3. ओके. सो नाउ मल्टीप्लाई देम. तो सबसे पहले 3 1 जा 3 3 जा, ये कैंसिल हो रहा है. 3 1 जा, ये भी 3 कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 by 3, वो भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1 ओनली, और अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 81. तो इसका मतलब T7 सीक्वेंस का जो सेवेंथ टर्म रहेगा, इट इज 1 upon 81. Second question. If A is 7 upon 243, exactly similar question है. R is 1 upon 3, find T3. Okay, so calculate T3. First I will get nth term, that is Tn. A R raised to n minus 1. A, which is 7 upon 243, R 1 upon 3 and raised to n minus 1. It is multiplied. ठीक है. This is my Tn. I want to get T3. T3. तो n की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे, तो 7 upon 243
मल्टीप्लाई बाय 1/3 और n की वैल्यू क्या पुटअप करना है 3, दैट इज 3 - 1 विल बी 2। या एक काम करते 3 लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में 3 - 1 करता हूँ। तो इट इज 7/2। 1/9, it's 1/9 will multiply, तो 7 1 जो 7 एंड 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 are 27, 7 carry 3, 9 4 are 30, carry 2, 9 4 are 36 plus 2 38, carry 3, 9 2 is 18 plus 3, so that is 7/2187, that's your answer। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम था, ए दिया था, यहाँ पे भी ए दिया था, आर दिया था, यहाँ पे भी आर दिया है, और टी एन निकालना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, ए और आर दिया हुआ है और T6 निकालना है, बस यहाँ पे आर नेगेटिव दिया है, तो ये भी मैं सम्स प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। थर्ड, ए इज इक्वल टू 7 एंड आर इज इक्वल टू -3, T6 कैलकुलेट करना है, तो Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू n-1। ठीक है, तो Tn 7, ठीक है, we want to get T6, 6 - 1 which is 5। यहाँ पे -3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला एक रूल याद रखो, माइनस को अगर तुम्हें ऑड पावर में सिंप्लीफाई करना, मतलब माइनस माइनस माइनस, तो सिंप्लीफाई होने पे माइनस ही आंसर आएगा। तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 3 raised to 5, तो 3 raised to 5 is 243, which is -1701। ठीक है, फोर्थ, यहाँ पे एक अलग टर्म्स दिया हुआ, मतलब तुम्हें ए दिया है, T6 भी दिया है, मतलब वी नो द सिक्स्थ टर्म, बट आर नहीं दिया, दैट कॉमन रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। तो a इज इक्वल टू 2/3 एंड r वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, अगेन इजी प्रॉब्लम है, विल यूज द फॉर्मूला फॉर Tn, a r रेज टू n-1, बट लेट हम लोग n की वैल्यू 6 भी पुट अप कर दे, बिकॉज वी नो कि 6 टर्म दिया हुआ है, तो आई विल पुट n एज माई 6, तो T6 a r 6 - 1 which is 5, तो T6 is my a r raised to 5। अब मेरे पास जो जो वैल्यूज तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूट कर दो, T6 इट इज सॉरी T6 इज गिवन एज 162, a 2/3, दिस इज r raised to 5, तो 162 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, टू 8 जा 2 1 जा 81 into 3, which is 243। now 243, अभी मुझे ये चेक करना है कि r रेज टू 5 दिया, तो यहाँ पे भी किसी का फिफ्थ पावर आना चाहिए, तो आई विल डू फैक्टराइजेशन। 243 3 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 27, 3 से 9, 3 से 3 3 एंड 3 से 1, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 243 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू 5। so on equating I can get the value of r, so this r is equal to 3, that's it। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन इजी है काफी, ये भी फोर्थ क्वेश्चन। 3 टर्म्स अगर जीपी में दिया हुआ है तो रिलेशन याद होगा, ए बी सी लेके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जिसमें मिडल का जो स्क्वायर रहेगा ये रिजल्ट इज ए इंटू सी। तो बी का जो स्क्वायर आएगा इट विल बी ए इंटू सी, एक्स का स्क्वायर ए इंटू सी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर था, वहां जाएगा तो स्क्वायर रूट, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, so everyone has to rejoin after this session.